Hello, how are you? So, I'm here again with a new chapter, time and calendar, and I hope you have done the previous work and understood what we have done in the previous chapter. So, here, as your examinations are on the round, what we have to do, you have to revise more and more and ask me the problem in the class, and please line up your problems and check in the online class whether the other students are also asking the same problem, and if it's sorted out by me, you have to tick that. Okay, just like 1 2 3 4 question number, whatever the question you want to ask me, just write it on a copy somewhere so that you can ask me very promptly and we don't waste our time. So let's start with the new chapter, time and calendar. As you all know, time, you have learnt it in class 3 also, right? Time, you know, am, pm and all that, many things you know about things. The clock has two hands. The longer hand is called minute hand and the shorter hand is called the hour hand. Okay, the time and the minute hand takes to move from one small division to another is called a minute. Like 1 से 2 पे जा रही है, 2 से 3 पे जा रही है, तो उसको कहते हैं minute. The time, the hour hand takes to move from one number to another is called an hour. Okay, जो स्मॉलर डिविजन्स होते हैं क्लॉक के बीच में, उसमें मिनट्स होते हैं, एंड 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, व्हेन द स्मॉल हैंड मूव्स, okay, when the small hand moves from one number to another number, it completes an hour, and when the longer hand moves from one number to another number, it covers the minutes. Every number, every turn which is covered by the longer hand is called minute. From, suppose when the longer hand moves from 1 to 2 and 2 to 3 and 3 to 4, it means the 5 minutes passing on. That's why one day has 24 hours, 1 hour has 60 minutes. How 60 minutes? Because 1 to 12, the counting has 1 to 12 and every number has 5 minutes. So when you multiply 5 into 12, you will get the 60. 5 means the minutes which is passing from the one number to another, like 1 to 2, and 12, the total numbers are 12. That's why 12 into 5 is 60 and 1 minute is equals to 60 seconds. Now the day begins at 12 midnight. जो हमारा दिन शुरू होता है वो रात के 12 बजे से शुरू होता है. दिन शुरू होता है, ठीक है, रात के 12 बजे के बाद से डे शुरू होता है, क्योंकि 12 बजे तक रात होती है, एंड एंड्स एट 12 मिडनाइट, और 12 बजे पे ख़त्म होता है पूरा दिन. तो जो टाइम होता है बेटे मिडनाइट, 12 मिडनाइट से 12 नून तक इज कॉल्ड एम, मीन्स एंटे मेरिडियम. 12 मिडनाइट, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक जो होता है उसे हम एम कहते हैं, एंड दोपहर 12 बजे से 12 नून से 12 मिडनाइट तक जो होता है हम उसे पीएम कहते हैं. ठीक है, द फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज बिलोंग्स टू दिस बुक इज ओनली ऑन एम एंड पीएम एंड हाउ वी कैन राइट आवर टाइम. So how we are writing our time is like half past, quarter past, half to, quarter to. Okay, ये सब आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, एंड एज अभी मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी. नाउ कम टू द पॉइंट. एक्सरसाइज 16.1, राइट द टाइम यूजिंग AM और PM. आपको सिर्फ AM और PM बताना है, मतलब 12 बजे के बाद है, रात के 12 बजे के बाद है तो AM, और दोपहर के 12 बजे के बाद है तो PM. सो कम. 4 hours आफ्टर मिडनाइट, रात के 12 बजे के 4 घंटे के बाद होगा 4 AM, मतलब सुबह के मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग AM है ये. 1 hour 30 minutes आफ्टर 12 नून, दोपहर के 12 बजे के बाद 1:30 हो रहा है. ओके, सो PM. 1:50 इन दी आफ्टरनून, ऑब्वियसली बात है PM, क्योंकि 12 बजे के दोपहर के बाद है, नून के बाद. 12 द टाइम आफ्टर 12 नून. 7:30 इन द इवनिंग, ऑब्वियसली PM होगा बिकॉज इट इज़ इवनिंग, दैट मीन शाम के हैं, तो 12 मिनट 12 और नून के बाद है. 8 इन द मॉर्निंग, 12 मिडनाइट के बाद है तो AM. 8:50 इन द इवनिंग तो PM बिकॉज आफ्टर 12 नून है. 30 मिनट्स आफ्टर मिडनाइट AM. ठीक है, 12:30 मिडनाइट है ये, तो वो AM ही होता है. 15 मिनट्स टू 12 मिडनाइट, रात के 12 बजने में 15 मिनट हैं तो ये होगा PM. ओके, 12 बजने में
15 मिनट है, दैट मीन 11:15, रात के 11:15. ओके, दैट मीन 12, ये हुआ 11:45. इससे पता चलता है. तो ये क्या हुआ 15 मिनट्स टू 12 मिडनाइट. 12 बजने में 15 मिनट. ठीक है, बिकॉज 1 मिनट है 60, 1 आवर है 60 मिनट्स. एंड इसको आप कह सकते हैं क्वार्टर टू 12. क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स हैज़ अ क्वार्टर, दैट्स वाई. ओके, अभी मैं आपको समझा देती हूँ. ये 2:15 आफ्टर मिडनाइट. ठीक है, रात के 12 बजे के बाद है तो AM. 6 आवर्स आफ्टर 12 नून, इवनिंग के हैं ये, तो PM आएगा. ठीक है, नाउ कैसे लिखना है. अभी हम टाइम कैसे लिखते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ. हाउ वी कैन राइट द टाइम इन अ 3 वे. सपोज आई ड्रॉ अ क्लॉक फॉर यू ऑल in front of you, that's why I am drawing it. You can draw circle or any kind of. How we can draw clock? 12, 3, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, first of all, the way to draw the correct clock, as you already learned in your previous classes, in class 2 also and class 3 also. Shorter hand, longer hand. Okay, shorter and longer. Now I draw the time with this pencil so that you can understand it. So this is 3 o'clock complete. I'll make you understand with 1 clock only. Okay, okay, so the second time is 3:30 o'clock. अभी हम only we are writing with only one thing. Okay, this is third. So this is 3. exactly 3 पे नहीं होती है. जब ये टाइम होता है तो इधर होगा. ठीक है, शॉर्टर हैंड विल बी देयर. तो ये जो थर्ड है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. ओके बेटा, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, सो दिस इज 3:45 o'clock. अब ये हो गया 3. ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी क्वार्टर्स कैसे होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 60 मिनट्स इज 1 आवर. ओके, तो हाफ होता है 30 मिनट्स. 1 आवर फुल टाइम. ओके, 60 मिनट्स, सॉरी 30 मिनट्स. ठीक है, इज हाफ आवर. हाफ है तो हाफ पास्ट आता है इसमें, जो भी टाइम आएगा. 15 मिनट्स का क्वार्टर आवर होता है. ठीक है बेटा, क्वार्टर आवर. ओके, हम इसे क्वार्टर कहते हैं. ये क्वार्टर 2 भी हो सकता है और क्वार्टर पास्ट भी हो सकता है. जैसे कि ये अगर इस पे है तो एक और टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्थ में आपको बता देती हूँ 3:15 भी हो सकता है. ठीक है ना, ये हो गया टाइम. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, 3 o'clock, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 3 o'clock कंप्लीट 3. ठीक है, इसमें मिनट्स नहीं आएगा. 3:30, हाफ पास्ट 3, हाफ पास्ट 3. 3 बजे से आधा घंटा ज़्यादा. हाफ मीन्स हाफ आवर. ठीक है, या फिर हाफ टू 4, दैट मीन 4 बजने में 30 मिनट्स हैं. ठीक है, ये कैसे लिखेंगे हम, ये देखिए. अभी हम लिखेंगे क्वार्टर 3 पास्ट 3, मतलब 3 क्वार्टर, क्योंकि एक क्वार्टर में 15 मिनट्स होते हैं, 3 क्वार्टर्स में 45. या फिर क्वार्टर टू 4, मतलब 4 बजने में 15 मिनट हैं. ठीक है बेटे, इसे लिखेंगे क्वार्टर पास्ट 3, मतलब 3 बजे के बाद 15 मिनट, या 3/4 4, मतलब 4 बजने में 45 मिनट्स हैं. ठीक है, ये हो गए द मेथड्स हाउ वी कैन राइट दी टाइम बाय 3 वेज. ओके, या फिर सिंपल इसे हाफ को हम 30 मिनट्स भी लिख सकते हैं. चलिए, कम टू दैट नाउ. क्वेश्चन नंबर 2. 40 मिनट्स पास्ट 6, तो कितने बचे 40 के बाद?
20 मिनट्स बचे टू 7, मतलब 6:40 इसमें टाइम हुआ है बेटे, ठीक है। 6:40 इन्होंने टाइम दिया है, 40 मिनट्स पास्ट 6, दैट मीन 6:40 हो गया, तो 7 o'clock होने में 20 मिनट्स रह गए हैं, ठीक है। 30 मिनट्स पास्ट 10, 3 पास्ट 10, दैट मीन 10:30 इज़ द टाइम ओवर देयर, तो 30 मिनट्स टू 11, क्योंकि आधा घंटा होता है तो हाफ एन आवर ही होता है, वो 10:30 भी होगा और हाफ टू 11, ठीक है बेटा। 55 मिनट्स पास्ट 12, दैट मीन 12:55, मतलब 1 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, ओके। दिस इज द टाइम, दिस इज द वे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट इन बुक ओनली। नेम इन 3 ways द टाइम शोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक, 3 तरीके से बताना है। जैसे 4:40 हुआ है टाइम, सॉरी 3:40 हुआ है, ठीक है, 3:40 इन्होंने लिख दिया, 40 मिनट्स पास्ट 3, 3:40 एंड 20 मिनट्स टू 4, 4 बजने में 20 मिनट। नाउ दिस इज 3:55, पहले आप ये टाइम लिख लीजिए, तो 55 मिनट्स पास्ट 3, ये वाला आप खुद से बनेंगे कि कितना मिनट्स है 4 o'clock होने में, और ये क्या है 3, ये है 2:45, 2:45 बजे हुए हैं, ये 2:45 लिखेंगे और इसमें आप अपने आप टाइम लिखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट क्लास टुडे, और आपके पास डेली क्लास आएंगी 2-3 दिन, ताकि हम ये चैप्टर कंप्लीट कर सकें, ओके। तो हम ये नेक्स्ट में 24 hour क्लॉक वाला टाइम करेंगे, ओके बेटा। चलिए, यू हैव टू डू दैट एक्सरसाइज इन दी बुक ओनली, ओके बाय।